اس کو مولائی کہتے تھے، اور انگریزوں کی کتاب میں رئیس قادیان اس کو کہا گیا، کیونکہ وہ خاکروبوں چوڑوں کا مولائی تھا، وہاں قبیلہ ہی ایک تھا، یہ چوڑے تھے. آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے یہ کتابیں غائب گلہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیں سب مل گئی ہیں. تو یہ امام دین کہہ رہے ہیں، اور انگریزوں کی کتاب میں ہمارے پاس بے شمار ریفرنس ہیں کہ امام دین ہی رئیس قادیان اس لیے تھا کہ وہ چوڑوں خاکروبوں کا مولائی تھا. اس نے اپنی کتاب دید حق میں اپنا مذہب بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، ہندو بھی نہیں ہے، سکھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مذہب بالمک ہے. آپ دیکھیں وہ، اور سب سے زیادہ گالیاں اس نے دید حق میں اسلام کو دی ہیں. کہتے ہیں اسلام تو ایک فراڈ ہے، نعوذ باللہ. مرزا قادیانی اس خاندان سے ہے. دیکھیں آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی شخص اپنا سربراہ کسی ایسے آدمی کو بنائے گا کہ جو دوسرے مذہب سے ہو. کوئی مسلمان کسی عیسائی کو لے کے آتا ہے کہ تو ہمارا جناب سربراہ مذہبی رہنما بن جا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. بلکہ مسلمان تو صرف اس گھر کے انسان کو اپنا مذہبی رہنما بنائے گا جو مستند مسلمان ہو اور اس کے خاندان کی شہرت اسلام کی. اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ چوڑے ایک مسلمان کو اپنا مولائی بنا لیں گے اور اس کے پیچھے وہ دید کی عبادت کرے گا اور اسلام کو گالیاں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. مرزا قادیانی کا پورا خاندان خاکروبوں کا تھا، چوڑوں کا تھا، اور ان کا مذہب اسلام ہرگز ہرگز نہیں تھا. اس کی تصدیق اس کے خاندان سے آئی ہے، ہم نے تو کی ہی نہیں. بالمک مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ دید حق میں لکھا ہوا ہے. اس نے اپنی عبادت بیان کیا، اس نے اپنے عقائد بیان کیے ہیں. اور بالمک مذہب کی میں نے کیوں اس کا ذکر کیا، اس مذہب میں آپ کسی سے بھی جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ماں سے، بہن سے، بیوی سے، بیٹی سے، سب کی کھلی اجازت ہے. بالمک مذہب کا قادیانیت سے باہر ماننے والا ایک اور شخص گزرا، وہ امریکہ میں تھا، پھر وہ انڈیا میں آ گیا. اس نے بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا اور بڑے بڑے امیر لوگوں کو. اس کا نام تھا بھگوان داس. وہ بالمک کہتا تھا اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو بالمک کا نبی اور بالمک کی طرح خدا کہتا تھا. جیسے مرزے نے اپنے آپ کو کئی بار خدا کہا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ ہے مرزے کا، اسی طرح بھگوان داس کا بھی خدائی کا دعویٰ تھا، اسی طرح بالمک کا بھی خدائی کا دعویٰ تھا. بالمک ایک انسان تھا، وہ ایک مشہور انسان اس طرح سے ہے کہ ہندو مذہب کی 2 کتابیں ہیں مذہب کی تاریخ کی، ایک گیتا ہے اور دوسری رامائن ہے. رامائن کا لکھنے والا بالمک ہے. وہ اصل میں ہندو تھا لیکن اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی. مرزا قادیانی کا خاندان اسی کا ماننے والا ہے. یہ تو مرزا قادیانی تھا جس نے 27 برس کی عمر میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ بالمک چھوڑ کے مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، کیونکہ اس نے کچھ استادوں سے پڑھا جو مسلمان تھے، اور اس کی دوستی تھی مولانا محمد حسین بٹالوی سے. اس بات کی تصدیق 2 کافروں کی کہانی میں موجود ہے، جو لکھنے والا امام دین، چوڑوں کا مولائی، چوڑا، اور انگریزوں کی کتاب میں رئیس قادیانی. وہ کہتا ہے کہ 27 برس کی عمر میں مرزا قادیانی نے اپنا بالمک مذہب سے الگ ہو کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے لگا، اس لیے کافر ہو گیا. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے اسلام کا انکار کیا، وہ کہتا ہے اس نے اپنے بالمک مذہب کا انکار کیا، اس لیے یہ کافر ہو گیا. اور دوسرا کافر کہتا ہے اس کو کافر کرنے والا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب تھے، اور اس کو اس نے کافر نمبر 2 قرار دی. آپ اس بیک گراؤنڈ کو بالکل صاف سمجھیں تو آپ کو مرزا خاندان کی ہر حرکت سمجھ آئے گی. آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ مرزا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیوں کیا، اور خدا تعالیٰ کی جو اس نے صفات ہیں اس کو ایک انسانی لیول پر وہ کیوں لایا. کیونکہ بالمک بھی ایک انسان تھا جو اس کا خدا تھا، جس کو مانتے ہوئے وہ 27 برس تک رہا. آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی قادیان میں کوئی مسجد کیوں نہیں تھی. ہمیں مرزا کی زندگی میں کسی مسجد میں جانے کا ذکر کیوں نہیں ملتا.
कुरान को हिफ्ज करने का या पढ़ने का और नमाजें पढ़ने का जिक्र क्यों नहीं मिलता? उसकी एक वजह है कि वाल्मीकि मजहब से था। वाल्मीकि की 6 इबादत गाहें हमें नजर आती हैं कादियान में, एक भी मस्जिद नजर नहीं आती। तो इस बैकग्राउंड में आप देखें तो मिर्ज़ा कादियानी के खानदान में वो जो इस्लाम के है ना कि ये जिनसी बेर और रवि से बचना और ऐसा कुछ नहीं था। मिर्ज़ा कादियानी तो नुसरत जहां को अपने सामने भेजता था, उसे पता था कि हकीम नूरे से इसके ताल्लुक हैं। उसने इसके बहाने तलाश करने की कोशिश की। उसने नियोग पर लिखा कि नियोग क्या है, और वही नियोग वो नुसरत जहां से कराता था क्योंकि उसको खुद तो नहीं उसके यहाँ औलाद हो सकती थी, लेकिन नुसरत जहां से उसने नियोग के नाम पर, क्योंकि वो उसका ईमान था नियोग, वो वाल्मीकि नियोग का मानने वाला था। आपको अगर इल्म नहीं तो वाल्मीकि ने रामायण में वाकयात ऐसे बयान किए हैं कि औरत एक थी, उसके 11 हस्बैंड थे। आपने कभी वो वाकया नहीं सुना? द्रौपदी उसका नाम है, एक औरत के 11 खामद हैं। मिर्जा उसी मजहब का मानने वाला है वाल्मीकि का। ये वाल्मीकि ने बयान किया ना द्रौपदी का वाक्य। तो आप सोचें कि जब मिर्जा बड़ा ही उस खानदान में हुआ और फिर तो उसने धोखा देने के लिए ये रवश इख्तियार की ना। तो इससे नुसरत जहां जो उसके तल्लुकात थे, हर इंसान जो नुसरत जहां से मिला उसने उससे ज़िना किया, अगर आपको इल्म नहीं। मौलवी अब्दुल करीम रेगुलर था, काजी यार मोहम्मद तो लोंडेबाज था, लेकिन वो कहते हैं नुसरत जहां से भी रेगुलर था। इसी तरह हकीम नूरा था, जो मोहम्मद अली था जो इंग्लिश में जिसने एमए की थी, वो तो नुसरत जहां उसके साथ भी जारी थी। जो भी आदमी था उधर वो सब इसके साथ थे। और अजीब बात यह है कि उसको हर 2 साल बाद बच्चा होता था। अगर आप 10 बच्चों की तारीख देते हैं कि उसमें वक्फा 2 साल, वो मैं उसकी वजह बता देता हूं कि इतनी बाकायदगी से ये जना करती थी कि बच्चा प्रेगनेंसी 1 साल लग जाता है, 9 महीने और कुछ, उसके बाद बच्चा दूध पीता है तो 2 साल तक औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, उसके बाद दूध छुड़ाए तो फिर प्रेग्नेंट हो जाती। तो रेगुलरिटी, जना की एक बड़ी शदीद रेगुलरिटी हमें मिलती है इनमें। तो ये मेरा ख्याल है आपको इससे इस बात का जवाब मिल जाना चाहिए कि मिर्जा जिन अकायद पर पैदा हुआ उन अकायद में इसकी ना सिर्फ इजाजत है बल्कि उसको तो अब द्रौपदी का मानने वाला जो है, द्रौपदी के तो 11 खामद थे, एक औरत थी, तो उसे क्या इतराज है नुसरत जहां जाए। यही बात मिर्ज़ा महमूद की जिंदगी में हमें मिलती है। मिर्ज़ा ताहिर की मां जो थी वो नायका थी, वो मरियम उसका नाम था, वो ज़ना का अड्डा चलाती थी इसके लिए, वो नाम नहाद इसका जिसको ये चनाब नगर में किसरे खिलाफत कहते थे, वहां आज भी यही कारोबार होता है। हमारी बात तो नहीं है, निधाउल नसर तो खुद कहती है वो ज़ना का अड्डा है। ये मिर्जा खानदान जो है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इस्लाम के नाम पर धोखा देते हैं। और फिर शुरू से क्या एक अरसे से तो ये बड़े हुकूमतों की सतह पर भी वो एक अलग दास्तान है कि पाकिस्तान को बेचते हैं। तो आप इस बात को, ये इसकी बैकग्राउंड को देखें तो फिर इसमें हैरानी की कौन सी बात रह जाती है। तो क्या हम तो सपोर्ट कर सकते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो था वो एक दलाल ख़ानदान से था? आप ये कहना चाह रहे हैं? दलाल खानदान तो फिर भी कुछ इज्जत होती है, वो तो बेगैरत मतलब आप कहें। दलाल तो वो है जो औरत को बेचता है, ये तो बेचते भी थे और इनका अकीदा भी वही था। दलाल का अकीदा वो नहीं होता जो वो काम करता है, ठीक है, उसको पता होता है वो गलत काम कर रहा है। यानी कि इन लोगों ने पैसे के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, माँ बहन भाई। नहीं, बगैर पैसे के भी वो उस खानदान में पैदा हुआ जहां इसकी इजाजत थी। आप देखें दुनिया में बाज ऐसे अकीदे राइज हैं जहां पर ये माँ बहन बेटी का रिश्ता वो नहीं है जो इस्लाम बताता है, वहां इन सब से ज़िना हो सकता है। मिर्जा उस किस्म के खानदान से था और एक काफिर खानदान का शख्स था। ये आपको
मैंने भी जब तहकीक की और मेरे हाथ में सबूत लगे तो मुझे भी बड़ा शदीद झटका लगा, क्योंकि मैं तो एक अरसे से समझता था कि ये वाकई मुगल खानदान से था और ताशकंद और इसके करीब से, जैसे ये कहता है कि फलां शख्स आया और फिर एक शजरा नसब था, वो सब झूठा शजरा नसब है जो किताबुल बरिया में लिखा है ना, उसमें आखिरी जो नाम जिसकी तस्दीक हो सकी वो गुल बेग है, गुल मोहम्मद भी नहीं है। शाह साहब मैं मुगल खानदान से हूँ, काइंडली ये ना कहें कि ये मुगल खानदान से था, या जो लोग कहते हैं तो भाई हम पे ऐसी तोहमत ना लगाओ कि ये मुगल नहीं, ये खानदान मुगल से था। खानदान से नहीं था, मैंने ये अर्ज हाँ जी, की ना, बिल्कुल। ये मुगलाई था। मुगल ये अपने क्या खाक कहते हैं, रोबों को हमारा मुगलाई कहा करते थे। अय्याशी का कोई अड्डा था, वहां से हो सकता है पैदा हुआ हो। बस आप जो मर्जी कह लें, मैंने आपको इसकी बैकग्राउंड देखें, हम जब बात करते हैं तो हम तस्दीक के साथ करते हैं, हम डॉक्टर साहब, बुहतान नहीं बांधते। डॉक्टर साहब ये नीचे कुछ कादियानी कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? हाँ मैं बताता हूँ प्रूफ। भाई नोट करो, किताब लिखो, इसका नाम है दीदे हक, DID, अभी अभी गूगल पर टाइप करो DID, फिर स्पेस दो, फिर E लिखो, फिर स्पेस दो और HAQ हक लिखो, और साथ या मेरा नाम लिख दो या लिख दो अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग, दोनों जगह से डाउनलोड हो जाएगी। बल्कि अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग लिखो, सीधा वो बशीर शाह साहब ने भी इसका लिंक लगाया हुआ है, इसको डाउनलोड करो। इसके पहले सफ़े पर लिखा हुआ है कि इसका मुसन्नफ इमाम दीन है, और इसको खूब गौर से पढ़ना मिर्ज़ई हो, आपको मिर्ज़े की असली शक्ल नजर आएगी इस किताब में। और मैं तो लिखने वाला नहीं हूं इसका लिखने वाला मिर्जा गुलाम कादियानी मुर्तद का फर्स्ट कजन, चोरी का यार, डाके का यार, शराब का यार, जना का यार, हर गुनाह का यार इमाम दीन है, जो अंग्रेजों की किताब में रईस कादियान भी कहलाता है। हो गया जी सबूत कादियानियों। अब जाके जिसको तुमने इल्जाम देना वो मिर्जे, डॉक्टर साहब कह रहा है मुखालफों की किताब, मुखालफों की किधर है भाई? उसका ओ भाई मिर्जे खानदान की किताब है, खुदा दा खौफ करो, मैं तो नहीं लिखी यार। इसका कजन था ना वो डॉक्टर साहब जिसने वो लिखी है ये। इसके नाम न देखें, ये मिर्जा कादियानी का बाप नामालूम है, ये हराम की औलाद था जी, लेकिन ये जिस शख्स के नाम पर रजिस्टर था उसका नाम था गुलाम मुर्तजा। इमाम दीन उसके छोटे भाई गुलाम महिउद्दीन का लड़का था। ठीक है जी, इसका आप कह लें कि नाम नहाद फर्स्ट कजन। भाई मैं तो लिखी ही नहीं कादियानियों, खुदा दा खौफ करो, जाओ जाके इमाम दीन नु पढ़ो। और वो इसका दोस्त भी था, उस किताब में लिखा हुआ है कि ये इसका बहुत अच्छा गहरा दोस्त था वो जो इमामदीन था पहले। नहीं, मिर्जे की जो यारी है ना वो हमेशा से इमाम, क्योंकि मिर्जा जो था ना ज़हनी मरीज था जी, वो हिस्सा चाहता था पीरी फकीरी में, उसकी एक टेंडेंसी थी, ये बात मैं नहीं कहता। और कादियानी दूजा प्रूफ लिखो, नाम है उसका एल्फ्रेड मॉल, ALFRED MALL, तो गूगल पर लिखो एल्फ्रेड मॉल ड्रॉप्सी कॉलेज PhD, उसका थीसिस डाउनलोड करो। थीसिस का टाइटल है अहमदियत इन इस्लाम। सुनिया है कादियानियों, मैं तो नहीं ना लिखा। ड्रॉप्सी कॉलेज दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज है मजहब का, पेंसिल्वेनिया में है, वहां से इसको डिस्टिंक्शन के साथ PhD इसने की हुई है, और इसकी 3 मिलियन कापियां लोगों ने डाउनलोड की हैं। डाउनलोड करो ना, तुम मुझे क्यों कहते हो? अब देखें, मैं तो सबूत दे रहा हूं ना, क्यों भाइयों, मैंने सबूत दिया कि नहीं? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सबूत दिया है, हमने खुद पढ़ी है ये किताब, मेरे पास पढ़ी भी हुई है। बिल्कुल। और यार लुकमान साहब, आप ये कह रहे हो ना दूसरे अंबिया पर इल्जाम लगे, तो मिर्जा साहब कोई नबी नहीं थे, एक बात। वो तो झूठा था, एक काफिर था भाई, और नबी दूसरा, कितों हो गया। डॉक्टर साहब जो रेफरेंस बता रहे हैं आप पढ़ लें ना, स्टडी से तो कुछ भी नहीं होता। और जिसने वो थीसिस लिखे वो मुसलमान भी नहीं है, ये भी बात ज़हन में। हाँ, ये वो थोड़ा सा ईसाई है एक शख्स, हाँ ये मेंशन कर। ताड़े यारा ने ताड़े खिलाफ गवाही दी है। हाँ, किताबों के नाम दोबारा से लिख दें, नीचे लिख दें जी डॉक्टर साहब। ये लोग बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि भाई वो नाम बताएं, का हम पढ़ना चाहते हैं ये। हाँ लिख देते हैं जी, देखिए मैं आप इसकी बात लिखो यार नीचे।
नहीं नहीं, मैं लिख देता हूँ, आप बात करें, मैं लिख देता हूँ। लुकमान साहब इंफॉर्मेशन एंड स्टडी और जो है ना पर्पसेस के लिए ये आप स्टडी ये भाई स्क्रीन बड़ी कर दी, मैंने लगा दी किताब इधर। हाँ, लो माशाल्लाह, लो जी, लो कादियानियों मिर्ज़इयों, कादियानियों लगाएं जी, लगाएं। ये है जी उसका पहला सफ़ा दीदे हक का। आगे लिखो अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग। ये इमाम दीन की किताब है, जरा गौर ना पढ़ो। इमाम दीन की किताब थी, मिर्जे दा कज़न, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लुकमान साहब ये यहूदी ने लगाते थे, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लगाए। ये इल्ज़ाम सारे ठीक है, यहूदी ने लगाते थे। हाँ, और वो दूसरा मैं अल्फ्रेड मॉल का नाम लिख देता हूँ, उसका थीसिस का, वो भी डाउनलोड करके पढ़ो। लुकमान साहब ये दीदे हक पढ़े ना यार, ये तो आपकी अपनी किताब है। इसको ये मानते भी हैं, मरज़ाई कहते हैं ये हमारी किताब है, लेकिन वो उसको उस तरह नहीं मानते जिस तरह ये लिखी हुई है। वो मानते हैं, इमाम दीन को मानते हैं कि ये इनका कोई अपना था। डॉक्टर साहब ये लुकमान साहब के कुछ सवालात हैं, इनके जवाब दे दें प्लीज, जो ऊपर आ गए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी शार्प शूटर भाई? जी ठीक ठाक। आप डायरेक्टली डॉक्टर साहब ने इल्जाम लगाए हैं डॉक्टर साहब की मैं इस तरह की बकवास रोज सुनता रहता और हूँ। यार तमीज से बात करनी है आपने, तमीज से बात करनी हैं है। इनके अपने अंदर की ख्यालात हैं, जहलियत तो हम भी मुद्दा शलवार करेंगे फिर। हाँ, हजूर सल्लल्लाहु कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसे लोगों के लिए मैंने सख्त अजाब तैयार कर रखा है जो चाहते हैं कि मोमनों में फहशात फैल जाए। देखो और एक बात सुनो, शख्स इसको जो- खामोश करें जरा, मसीह मौल चुप करो, बीच में ना बोलो, मैं इसको खामोश करें या इसको उतार चुप दें। करवाए, मैं तेरी छितरोल कर देनी अगर बकवास की बीच में। और बगैरत इंसान डॉक्टर साहब नाल तू को बकवास की मैं तेरियां लत्तां चीर के हाथ दे दे सा। जलील इंसान मर्जियो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लानत होनी चाहिए वो करना कर, लेकिन स्पीकर अपने मिर्जे इसको उतार दे नीचे, आप देखें। इस डॉक्टर को जरा रहने दे, इसके साथ मैंने बात करनी है, इसको मैं बताता हूँ। इसको मैं उतार दे नीचे, उतार कर डॉक्टर साहब नाल कर बगैरत नहीं, उतार दें इसको नीचे, अभी नहीं उतार नहीं, इस डॉक्टर को जरा मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ लुकमान उसको से कौन। ये एक मिनट, लुकमान से ये एक मिनट, अगर आप किसी एक रिस्पेक्ट के उसमें रह के बात करना चाहते हैं तो नहीं, डॉक्टर इसको अभी नीचे उतारे। मैं रिस्पेक्ट में बात करूंगा। हाँ, नीचे मैं उतार रिस्पेक्ट से दें बात इसको। करूंगा। डॉक्टर साहब एक मिनट, मैंने लुकमान साई से सवाल किए थे, लुकमान साई ने जवाब नहीं दिया, अब क्यों भाग हाँ, रही है? देखें बात ये है, खातमुल औलाद और खातमुल नबीयीन, तो इसका जवाब इन्होंने देना है। हाँ देखें बात ये है, अपनी जुबान पे कंट्रोल करके बात करें डॉक्टर साहब नहीं से। नहीं नहीं, इसको मत ये उठाएं आपकी आप। बदतमीजी कोई नहीं सुनेगा। शार्प शूटर इनको बात कंट्रोल में करेगा करें। यार, हम ये चाहते हैं आप इसको जो वो सबूत है, प्रूफ है, ये दें, इज्जत से बात करेगा ये। चलो लुकमान आओ। नहीं नहीं, इसको हम ऐसे लोगों से बात ही नहीं करते हैं, ये बहुत ही बेगैरत किस्म के काफिर हैं। तो बात ये है कि हमें, आप मुझे बताएं हमें क्या ज़रूरत है। हम तो सबूत लिख कर दे रहे हैं, आपको दीदे हक का सफ़ा दिखा रहे हैं, जो मैंने बात की है उसकी एक एक बात की तस्दीक इस किताब में मौजूद है कि मिर्ज़ा काफिर ख़ानदान से था, चूड़ा था, बाल्मीक मज़हब का मानने वाला था। ये बात उसके नाम नहाद फर्स्ट कज़न इमाम दीन ने लिखी है। मैंने तो इसको छाप दिया अपनी किताब में, मैंने 78 सफ़े लिखे हैं कि मिर्ज़ा एक चूड़े और खाकरोब ख़ानदान से था। और फिर मैंने अभी यहाँ नीचे लिखा था अल्फ्रेड मॉल का थीसिस। तो बात यह है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जो शख्स बदतमीज़ी करता है आप कभी उससे बात ना करें, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का। अल्लाह ताला ने इस बात से मनाही की है। ये बात तो काफिर भी करते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप जानते हैं कि सुन्नत मोहम्मद रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थी कि जब एक काफिर ने मदीना में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीज़ी का सलूक किया, हम तो उनके पाँव की खाक भी नहीं है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आके सहाबा रिजवानुल, इसको उतार दे नीचे, इसको नीचे उतार। शार्प शूटर भाई
इसको नीचे उतारें इस आदमी को। शार्प शूटर से बात करूंगा। नहीं नहीं, इसको नीचे उतार दें। डॉक्टर साहब हाँ मेरी ख्वाहिश है कि रिक्वेस्ट भी है कि आप इससे बात करें। ये बदतमीजी नहीं नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये बदतमीज आदमी है। इसको ना देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ अल्लाह का एक वरदान है, और मैं इसलिए नहीं कहता कि कोई डर जाए, बल्कि मैं एक सच बताता हूं। जो मेरे साथ बदतमीजी करता है वो इस दुनिया में तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है, खास तौर पर कादियानी और इस किस्म के लोग। मैं किसी और ये इस वजह से कहता हूं ताकि लोगों बेखबरी में ना मारे जाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब 2 किताबें और भी आपने बताई थी, 2 काफरों की कहानी और दिलेश गुफ्त। दिलेश गुफ्त। अच्छा हाँ ठीक है। आप देखें, किसी बदतमीज से हमें बात करने की जरूरत नहीं है, आप ये बात समझें। मैंने बिल्कुल आपसे सही है। बार बार कहा है कि खुदा के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन यहदी अल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल हो फला हादी लहु। जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। इसको तो अल्लाह ने गुमराह किया हुआ है, आप कैसे इसको हिदायत दे सकते हैं? सैयद साहब, ये जो दीदे हक है ये मिर्जा साहब का कजन था कि कौन था जिसने लिखी थी? ये मिर्जा कादियानी, जिस आदमी गुलाम मुर्तजा के नाम पर रजिस्टर था, उसके छोटे भाई गुलाम महियुद्दीन का बेटा था इमामदीन। 5 भाई थे। अताब एक जो था ना, इसका दादा, नाम नहाद दादा, क्योंकि इसका बाप नामालूम है मिर्जा कादियानी का। और 2 काफरों की कहानी किसने लिखी? इसी ने, जिसने दीदे हक लिखी। और तीसरी किताब कौन सी है? इसी ने लिखी, दिलेश गुफ्त। दिलेश गुफ्त जी सही है। ये भी पढ़ा लिखा इंसान था। अब ये आप फैसला खुद कर लेना। इसने ये 3 किताबें जरूर लिखी, और ये अंग्रेजों के हिसाब में रईसे कादियान था। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, तो इनका बाल्मक मजहब था। हाँ, मिर्जा कादियानी जिस मजहब में पैदा हुआ, अब ये दीदे हक में लिखा है, भाई मैं तो नहीं कह रहा। यहाँ तो कोई कादियानी आकर बकवास करने वाले जो बदतमीज हैं, और मैं इसको बता दूं, ये लुकमान साहब, आप बस आपका बुरा वक्त शुरू हो गया आज से, ये आप मेरी बात याद रखें। तो बात ये है कि ये दीदे हक किताब मिर्जा कादियानी के सो कॉल्ड रिश्तेदार हो गया ना। अगर उसका बाप गुलाम मुर्तजा उसके नाम पर रजिस्टर था ना ये, हालांकि उसका बाप नहीं था, तो उस हिसाब से तो उसका फर्स्ट कजन हो गया ना, चाचा का बेटा। जी जी हाँ, उसने लिखी है, मैंने तो नहीं लिखी। कादियानी पता नहीं क्या इनका दिमाग खराब है, दिमाग उल्टा हुआ है तुम्हारा कादियानी। मैंने तो अपनी तरफ से कभी कुछ बनाकर नहीं तुम्हें कहा। मैं कहता हूं मेरी किताब इंग्लिश जुबान में है, उसका उर्दू तर्जमा भी मैं ही करूंगा। 670 सफ़े की किताब है, उसका नाम मैंने रखा है फ्रॉम स्वीपर टू स्विंडलर, एक चूड़े से खाक से धोखेबाज तक, ए लाइफ ऑफ ए लायर, एक झूठे की जिंदगी। जब तक कादियानियत रहेगी लोग ये किताब पढ़ा करेंगे। इतने 300 से ज्यादा सबूत मैंने लगाए हैं इस किताब में। स्वीपर टू स्पेंडलर, फ्रॉम स्वीपर टू स्विंडलर। ट्विंडलर, स्विंडलर कहते हैं धोखेबाज को। जी डॉक्टर साहब, ये आपकी किताब आ गई है? नहीं, ये अभी मैं इसको दोबारा ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हम वेट कर रहे हैं काफी टाइम से इसका। नहीं, बड़ा वक्त लगता है ना, मुझे काम भी तो करना है ना। जी जी, पूरा वीकेंड मैं इस किताब पर काम करता हूँ, तो किताब लिखने में तो 6-7 महीने बाद तो साल से ज्यादा लग जाता है। जी जी बिल्कुल। हम तो कब से तो असल में तो ये 1200-1400 1600 सफ़े बन जाते अगर मैं इसके सारे स्कैन लगाऊं। जी जी, तो 1600 सफ़े की किताब तो फिर लोग साइज देख के नहीं पढ़ते ना। जी जी, हाँ, तो कादियानी जो है, अब मुझे नहीं पता कि इनको मुझसे क्यों इतनी उलझन होती है
डॉक्टर साहब मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ, जो बंदा बदतमीज हो ना कादियानियों का, बिल्कुल ना बात करें, उसको उतार दें आप, हमें हमारे कोई साथ- जरूरत। देखें 900 से जायद कादियानियों ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया है पिछले 18 महीने में। जी ठीक है। डॉक्टर साहब हमसे कोई बदतमीजी करे ना, हमारा लेवल और है, आपका तो लेवल वलियों वाला लेवल है, आपसे कोई बदतमीजी करे वो हमसे नहीं, बर्दाश्त किसी नहीं से होती। भी हम सब एक हैं। बात ये है कि मैं कादियानियों को एक बात बार बार कहता हूं, ये बात मैंने मिर्ज़ा ताहिर को भी कही थी। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें, और उसको पता था, कहता था कि मुझे अंदाजा हो गया है कि आपके साथ है। तो मैंने उसे कहा था कि ये जो है ना, और मिर्ज़ा ताहिर कादियानियों को कहा करता था कि इस लड़के से बहुत मोहतात रहें आप लोग, और मेरे साथ कोई कादियानी बदतमीजी नहीं करता था। ये जो अब करते हैं, आप इनका हालात जाकर देख लें। और वैसे तो मुझे तो इनसे कोई ऐसी किसी कादियानी को मुसलमान करने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो तो खुद ही हो जाते हैं, और वो अल्लाह ताला का एक उन पर एहसान है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है उसमें। तो अब ये तो बड़े अफसोस की बात है कि किताबें इनकी, और जो अपने लिखी हुई सबूत को डिनाई करता है, तो उससे बड़ा वो तो एक जाहिरन एक झूठा और लानती शख्स है। किन की? हाँ हाँ, वो सब वाल्मीकि भाई, वो तो देखें, वो अगर आप मिर्ज़ा महमूद जानी जो था, जिसने अपनी बेटियों से ज़िना किया, मैंने उसकी बेटी अमतुर रशीद के खुद ये सवाल किया था, सामने बैठी हुई थी मेरी, मैं उसके घर पर गया था, उसने कहा भाई बिल्कुल ठीक है बात। फिर मैंने ऑस्टिन टेक्सास में उसका जो मामू था अमतुर रशीद का, अब्दुल मन्नान, ये दोनों अब फौत हो चुके हैं, उससे मैंने सवाल किया। वो बड़े बुढ़ापे की उम्र में था, वो लाहौरी जमात का नाइब अमीर या इस किस्म की चीज़ भी होता था कोई, जो 1974 में सदरुद्दीन के साथ उसका नाइब जो था वो अब्दुल मनान था, हकीम नूरे का लड़का। नूरे के 2 लड़के थे, अब्दुल वहाब बड़ा था और अब्दुल मनान छोटा था। मैंने उससे पूछा तुम्हारी भांजी भतीजी, उसकी बहन की बेटी थी ना अमतुर रशीद, अमतुल हई था इसकी माँ का नाम, जो बहन थी अब्दुल मनान अब्दुल वहाब की। मैंने कहा उससे ज़िना किया, लोग बड़ा मशहूर है। कहता है बिल्कुल किया। कहता है एक दफा नहीं, सैकड़ों मर्तबा किया। उसके लफ्ज थे एक मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा किया। और जब उसकी माँ 9 साल की थी, जब इससे ज़िना किया मुद्दे ने, जब उसकी माँ ने 2 लोगों को खत लिखा, एक दीवान सिंह था, वो सहाफ़ी था, और एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर उस वक्त का। तो ये 1924 का वाकया है, जब ये इंग्लैंड में ज़िना करने गया हुआ था मुद्दा, जहाँ पर ये नंगी औरतों के क्लब्स में जाता था और न्यूड बीच पर घूमता फिरता था। ये इसके मशागिल थे इंग्लैंड में, और किराए की लड़कियां मंगवाता था। तो जब ये वापस आया तो दीवान सिंह से इसकी दोस्ती थी, तो उसने कहा भी तेरी बीवी ने तो ये खत लिखा है कि तूने अपनी लड़की से ज़िना किया। तो इसने फिर अमतुल हई को जहर दिलवाया नुसरत जहां से, वो जो सबकी बेगम थी। और जब वो मर रही थी तो उसको कहते थे कि माफी मांग लो, तो किसी ने जाके अब्दुल वहाब अब्दुल मनान को बता दिया कि भी ये हो रहा है तेरी बहन के साथ। वो तो अपने यारों दोस्तों के साथ लाठियां लेकर आए और इतना मारा उन्होंने, नुसरत जहां के कपड़े उतार कर अलफ नंगी करके उसको घर के बाहर सड़क पर खड़ा किया था। ये आपको बताते नहीं है कादियानी। और उसको दौड़ाते थे सड़क पर नंगी, नुसरत जहां बिल्कुल नंगी की हुई थी उन्होंने। और मुद्दे को इतना मारा उन्होंने कि उसकी एक आंख जो थी ना वो शीशे की थी, वो आंख अब्दुल मनान अब्दुल वहाब ने मार मार के खत्म की थी उसकी। वो तो इन्हें लगा कि मर गया, तो उसको आ गए तो बच गया, शैतान था ना। तो ये वाकयात एक हकीकत पर मबनी है, ये है कादियानियत। और आज देखें, जब मैं पहले एक ज़िया रसूल साहब हैं,
ان کا یوٹیوب کا چینل تھا، تو میں نے ویسے ہی کہا کہ قادیانی کو اگر میں نے یہ حقائق بتائے تو میری بات نہیں مانے گا، کہے گا جی جھوٹ بول رہے جیسے کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک تھیسس پڑھا الفریڈ مال کا، پورا تھیسس پڑھ کے سنایا میں نے، یہی باتیں لکھی ہیں اس سارے تھیسس میں۔ اس پر اسے پی ایچ ڈی ملی ہے پینسلوینیا یونیورسٹی سے۔ وہ کہتا ہے مرزا پاگل ہے، مرزا زناکار ہے، مرزا کافر خاندان میں سے ہے، کہتا ہے کہ ان کی خلافت ایک فراڈ ہے اور مرزے کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں میں تو نہیں کہتا ہوں، ہمیں تو تم نے بتایا کہ قادیانیت ہے، ہم نے اس کو پھر پڑھ لیا۔ تم بھی پڑھو، تم تو ایسے بدبخت ہو، تم اپنے جس کے پیروی کرتے ہو اس کو نہیں پڑھتے، اس مذہب کو، اور آ کے بدتمیزی، دیکھو بدتمیزی کی میرے ساتھ اجازت نہیں ہے، جو بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کو برباد کر دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا میری بات۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ اللہ کا یہ ایک خاص وردان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ان کے پاس اتنا قریب سے کیسے، یعنی کہ آپ کیا اس مسئلے یار سے؟ بات یہ ہے کہ مرزا طاہر مرتد جو تھا نا، اس کی میرے والد صاحب سے کچھ واقفیت تھی، آپ سمجھ گئے؟ تو صحیح۔ ایک دفعہ جب میں 15 سال کا تھا تو پاکستانی ایمبیسی نے مجھے بلایا 14 اگست کے ڈنر پر، ایک شخص کو بلایا اور وہ بھی مجھے ساتھ لے گیا، وہ پاکستان کے سفیر رہ چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو تم پڑھتے ہو یہاں پر تو میں تمہیں لے چلوں، تو میں چلے گیا۔ تو اس نے مرزا طاہر کو ادھر وہاں تھا موجود کسی وجہ سے، اس نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ لڑکا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، شکل تو لگتی ہے کسی فیملیئر کی، جیسے وہ باتیں کر۔ تو اس نے میرے والد کا نام لیا کہ یہ وہ لڑکا ہے، ان کا لڑکا ہے۔ وہ تو لٹو ہو گیا، کیونکہ اسے میرے خاندان سے کچھ ایسی، وہ قادیانی چاہتے ہیں کہ بعض خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی قادیانی ہو جائے تاکہ وہ اس کو ذریعہ بنا کر اپنا فراڈ جاری رکھیں، بس یہ بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور مجھے پتا تھا قادیانی ٹھیک لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ مطلب دماغ سے بھول گیا ہوا تھا کہ کیا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے ذکر نہیں تھا کیا، پھر بعد میں نے پڑھ لیا۔ یہ سارا قصور مرزا طاہر کا ہے کہ میں قادیانیت کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے نہ الزام دیا کرو قادیانی، وہ مرتد نو کا، اور لعنت بھیجا۔ اور وہ کتے کی موت مرا مرزا طاہر، آپ کو میں بتاؤں، میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا، ایسی موت خدا تعالیٰ کتے کو بھی نہ دے۔ انہوں نے زہر دے کے مارا مرزا کا طاہر کو، آپ کو اگر نہیں پتا تو زہر دینے والا مرزا لقمان تھا۔ میری باتوں کا نہیں یقین تو ایک شیخ صاحب سے جا کے پوچھ لیں۔ اور اس کو زہر دینے والوں میں لوگوں کے نام بتاتا ہوں، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس اپنے یوٹیوب چینل پر، وہاں پہ میں نے وہ اخبار کے دکھائے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ خبر چھایا کی تھی کہ مرزا طاہر کو زہر دے کے مار دیا گیا۔ اور یہ بات مجھے اس ڈاکٹر نے بھی بتائی تھی خود، جو اس کا علاج کر رہا تھا آخری دنوں میں، کہ اس کو زہر دے کے مارا ہے انہوں نے۔ ہن دسو مرزائی ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بہت انٹرنل انفارمیشن ہے ان کے متعلق۔ میں کہتا ہوں انٹرنل سے بھی زیادہ انٹرنل ہے میرے پاس۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہ انفارمیشن آئی کہاں سے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہاں سے آئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کو دیکھیں، آپ جانتا تھا۔ یا تو مرزئی ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ اس خاندان سے تعلق ہے۔ اگر آپ کا اس خاندان سے تعلق نہیں ہے تو مطلب ان کے کوئی افراد ہیں جو آپ تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ نہیں پہنچاتے، کیا مطلب؟ مجھے انہوں نے خود یہ بتائی ہیں نہیں تو یہ باتیں، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بالکل لکھی ہوئی ہیں، اور زہر دیا گیا۔ نہیں بات آپ خاص سوال کریں میں اس کا جواب دوں گا۔ کس بات کا؟ نہیں، میں نے پوچھے نا۔ ابھی جوائن نہیں کیا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بیٹے کو زہر دے دیا گیا، تو زہر نہیں مرزا طاہر کو زہر دے دیا گیا۔
تو اس کو زہر کس نے دیا؟ مرزا لقمان نے، ندا کے اس باپ کی نے۔ کوئی ریزن ہوگی نا کہ زہر کیوں دیا گیا؟ مرزائیوں سے جا کے پوچھیں جی، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو مرزائی ہوں نہیں، نہ میرا رشتہ دار ہے کہ میں ان سے میں بھی مرزائی نہیں ہوں، دیا۔ نہ میرا کوئی رشتہ دار مرزائی ہے۔ آگے بتائیں۔ صحیح۔ مجھے اس کے ڈاکٹر ہے نا جی، اس کا نام قریشی کر کے نام تھا اس کا، جب مرزا طاہر مرا نا تو اس کے 1 یا 2 دن بعد میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے روکا راستے میں، کہتا ہے ادھر آؤ تمہیں میں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتا ہے کہ انہوں نے مرزا طاہر کو زہر دے کے مارا ہے۔ میں نے کہا کس نے دیا؟ کہتا ہے مرزا لقمان نے۔ میں نے کہا کس کے کہنے پر؟ اس نے 4 آدمیوں کا نام لیا، نام سن لیں جی آپ بھی، عطاء المشیب راشد، رفیق حیات، محمود ملک اور منیر جاوید۔ اللہ، یہ لوگ آپس پہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ دیکھیں جی میں نے آپ کو نام بھی بتا دیے، یہ اس سازش میں۔ اور میں نے بتایا کہ میرے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے اس کو زہر دینے کی، اور وہاں پر میں نے وہ اخباروں کے صفحے دکھائے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے مرزا طاہر کو زہر دے کے مارا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ کریں ان کو اس بات کا جواب میں دے دوں کہ آپ کو ان کی انفارمیشن کیسے ہے، ان کے آپ کے پاس؟ نہیں میرا ان سے بتایا نا، مرزا طاہر کے ساتھ کوئی میں بیوقوفی میں نا، وہ مجھے بلاتا تھا میں چلے میں جاتا آپ تھا۔ کو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے بندے کے پاس، کہ جو رد قادیانیت پہ کام کرتے ہیں نا، کچھ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کردہ بندے ہوتے ہیں، ان میں سے جو سب سے میرا خیال ہے سب سے بڑے اس طرح میں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا ضیاء رسول امینی صاحب ہیں، تو ان کے پاس اس لیے علم زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اپوائنٹ کردہ ہیں بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور کسی نہ کسی کو تو اٹھنا تھا نا ان کے خلاف بات کرنے کے لیے اور ان کی انفارمیشن دینے کے لیے، ہم آگاہی دینے کے لیے۔ میں مطلب اللہ تعالیٰ کا تو ہر ایک پر احسان ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جی جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں سجدہ کی جگہ پر رکھیں اور کھلی رکھیں، کیونکہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے حضور حاضر ہیں۔ تو اگر آپ اس حقیقت پر غور کریں، اور میں آپ کو ایک سچی بات کہتا ہوں، جس دن آپ نماز اس طرح سے پڑھیں گے آپ کی دعا ہر قبول ہو جائے۔ یہ بات آپ جانتے نہیں ہیں شاید۔ جب آپ پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور یہ سمجھ کر کھڑے ہوں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور وہ خالق کائنات ہے اور آپ کے اس کے حضور میں حاضر ہیں، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت بڑی عجیب سی حقیقت ہے، یقین مانے بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو کوئی انسان کی کسی دوسرے انسان پر شاید، ہاں انبیاء کی تو بہت برتری ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا تھا کہ کل، آپ ان سے کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں آپ لوگوں جیسا ہی انسان ہوں، یوحا الیہ، لیکن میری طرف وحی آتی ہے۔ افادیت بھی بتا دی کہ برتری یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی، انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد۔ یہ سورہ الکہف کی آخری آیت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو آپ انسانوں جیسے ہیں، لیکن آپ کی برتری جو ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا اور آپ کی طرف وہی نازل ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی اس بات کو تائید کروں گا کہ میں کافی دنوں سے اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا آپ سے بات کروں اس بارے میں، کہ آپ نے جو کہا نا کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے، تو یہ بات مجھے تو پروف اس کا مل گیا ہے، کیونکہ جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں نا تو میرا جو دل ہے، جو دماغ ہے، وہ ایک قسم کا سکون میں آ جاتا ہے۔ میں جہاں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ نیچے بیٹھ کے یا اوپر بیٹھ کے صرف آپ کو سنوں، اور وہ سن کے آپ کو اتنا سکون ملتا ہے نا کہ میرے سارے دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، یقین کریں۔ نہیں، یہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ
اب مجھے وہ لفظ نہیں آ رہا کہ حسن ظن جسے کہتے ہیں نا وہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کا اللہ سے تعلق ہے، جی جی بس ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. اگر آپ کی کوئی شخص آپ کا دوست ہی نہ کریں تو پھر وہ تعلق تو یک طرفہ ہو گیا نا. جی اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو سب کچھ دینے پر قادر ہے، پر ہمیں تو کبھی ہماری دعا ہے. اور میں تو دعا جب کرتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو کسی کو دعا دیں تو اس میں شرط نہ رکھا کریں کہ اللہ تیری جائز دعائیں پوری کرے. اللہ تعالیٰ تو ناجائز کو بھی جائز کرنے پر حاوی ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں کہا تو بغیر مشروط طور پر کہا ہے اللہ نے، ادعونی کہ مجھ سے مانگ، استجب لکم میں قبول کروں. ڈاکٹر صاحب اس کا میرا ایک سوال ہے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر دیں. نہیں ہوگی آپ بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہے وحی اب اور ایک ہے الہام. جی ہاں، اب جو میں نے آج تک علم حاصل کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اب جو وحی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، لیکن جو الہام ہے وہ ہو سکتا ہے انسان کو خواب کی صورت میں ہو یا کسی سوچ کی صورت میں ہو. تو اس کے مطابق تھوڑا سا وضاحت دے دیں، کیا الہام جو ہے نا یا غلط ہوتا ہے؟ الہام القا ہے ایک قسم کا. الہام وہ ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہے، اور ہمیں تو نہیں کبھی الہام ہوا تو ہم تو نہیں بتا سکتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انبیاء کو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، اور ان کو ایک بڑا شدت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پیغام اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا پیغام پر کوئی لے کر آتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لاتے ہیں، اور جب وحی آتی تھی تو وہ اس کو پڑھتے تھے، جیسے سورہ طٰہٰ میں لکھا ہوا ہے، اور بڑا واضح قسم کی سورہ طٰہٰ میں آیت ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑی تیزی سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری آیات نازل کر دی. تو آپ کو یاد ہے وہ آیات یا آپ نے کبھی پڑھی ہیں؟ کیوں بھائی؟ کون سی آیات ڈاکٹر صاحب؟ وحی کے بارے میں جو ہے سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے، آپ کی بات کا جواب بھی ہے، وہ ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک اور حق ہے، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی پوری ہو جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی یا الہام آتا تھا تو جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی آپ کو کہ آپ یہ جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے دعا کر لیا کریں، وَقُلْ اور کہہ دیا کریں رب زدنی علما، اے رب میرا علم بڑھا. آپ نے دیکھا ہے یہ دعا اسکولوں کالجوں پر لکھی ہوتی ہے. جی جی، یہ ہم نے وہ اسلامیت کی کتاب میں بھی پڑھی ہے یہ والی آیت. یہ ہر بچے کو سکھانی چاہیے، وہ پھر بہت اچھا پڑھنے لکھنے لگ جاتا ہے. جی جی، رب زدنی علما، اے رب میرا علم بڑھا دے. جی جی. ہاں جی، اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پھر اس مذہب کی سرچ کتنا عرصہ جاری رکھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ساتھ ایک بات ہے جو مجھے بڑے ہو کر پتہ لگا، عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. میں کتاب کو نا 500 صفحے کی کتاب کو ایک دن میں پڑھ لیتا ہوں. مجھے سمجھ اتنی نہیں آتی، آپ ایسا نہ سمجھیں، لیکن 10-12 مرتبہ پڑھوں نا تو یاد ہو جاتی ہے.
तो मैंने मिर्जे की किताबों को हफ्तों में पढ़ लिया था, पूरी की पूरी, जो इनके 23 वॉल्यूम है ना। फिर मैंने उसे 8-10 मरतबा पढ़ा तो मुझे समझ लग गई कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो ये एक बास लोग हैं ऐसे जो मतलब हरफ नहीं पढ़ते, सफ़ा पढ़ते हैं। तो बस ये एक इस वजह से मैंने बहुत जल्दी किताबें में पढ़ लेता हूँ, इसीलिए शायद मैंने पीएचडी भी की, इसके बाद तो डिग्री नहीं होती। तो ये थोड़ा सा शायद मुझे एज है दूसरों पर। पंगेबाज कोई नहीं कर रहा माइक आपका म्यूट यार, किसने किया? 3 दफा म्यूट हुआ है भाई, पता नहीं किसने किया है। किसी मॉडरेटर ने ना किया हो। जी जी, चले कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक छोड़ें इसको। डॉक्टर साहब इस टाइम तो ये शाह साहब भी मॉडरेटर हैं। शाह साहब ने पंगा लेता होना फिर। शाह साहब क्यों पंगा इफी शाह साहब बैठे हैं ना। इफी शाह साहब क्या हाल है आपका? ये मॉडरेटर है मेरे। जी जी, कोई नहीं, ठीक है। हाँ नहीं, हमारे तो दोस्त हैं ना। हमारे तो दोस्त हैं, हमारे तो भाई है ये। ये बस म्यूट कर रहे हैं आपसे, अटकेलियां प्यार का इजहार कर रहे हैं, मुझे लगता है ये। कोई बात गहरी नजर रख देना कारोबार से। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब करो को गल को मिठी मिठी, शाह साहब बड़ी गल्ला सुनने जी करदा। है आप नहीं नहीं, आप पूछें, अगर मुझे पता होगी तो मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर साहब एक और मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इधर हम इंग्लैंड में रहते हैं, आप भी मेरे साथ इधर ही हैं। हाँ हाँ, मैं इंग्लैंड में। तो ये इधर जो पेंशन का सिस्टम है, ये हलाल है? क्योंकि पेंशन के ऊपर ये इंटरेस्ट लगता है, मेरा ख्याल, मुझे कल पता चला इस बात का कि पेंशन के ऊपर तो इंटरेस्ट लगता है। कौन सा इंटरेस्ट लगता है, मुझे तो नहीं पता। ये जो पेंशन लेते हैं लोग इधर से, जो मतलब एक तो नेशनल इंश्योरेंस वाली पेंशन होती है, स्टेट पेंशन उसको कहते हैं। वो तो अलग से है ना, वो तो हम टैक्स पे करते हैं, तो वो हमें बाद में मिलती है। एक होती है जो आप खुद से पेंशन, मतलब 5% आप पे कर रहे हैं या 7%? हाँ, वो जो आपकी प्राइवेट पेंशन या आपके जॉब की पेंशन है। जी जी, तो हाँ, उस पर शायद आपकी बात ठीक है, क्योंकि वो पेंशन तो अगर आप सारी जिंदगी देते रहें तो फिर आपकी लास्ट पे के तकरीबन बराबर देते हैं आपको। तो वो इंटरेस्ट लगता है ना उसके ऊपर, मेरा ख्याल है। तो इस वजह से मैं तो नहीं लेता, वो मैंने करवाई भी नहीं हुई। तो मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने कल एक इन्फॉर्मेशन लिया किसी बंदे से, तो उसने मुझे बताया कि ये इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो इंटरेस्ट मतलब बैंक आपको देता है, तो इसलिए आपके वो 4% जो आपको कंपनी पे करती है ना, तो वो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर, जो आप पैसे उनको डिपॉजिट करवाते हैं। देखें, यहाँ पर जो सूद का निज़ाम है वो तो बड़ा वाइड स्प्रेड है जी। उसको तो आप मतलब अगर आप बिल्कुल चाहें कि ना उसमें हाथ डालें तो फिर तो आप बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते। नहीं, वो मैंने करंट अकाउंट पर नहीं मिलता सूद आपको, बाकी सारे अकाउंट्स पर मिलता है। नहीं, वो सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ ना डॉक्टर साहब, बस सिर्फ एक वो डेबिट अकाउंट खुलवाया हुआ नहीं, है। इतना सेविंग पर देते भी नहीं है, न खुलवा के, ऐसे ही गुनाह लेने वाली बात है। जी जी, बिल्कुल गुनाह लेने वाली बात है। तो उस पर कोई इंटरेस्ट भी ऐसा अच्छा नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा है आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो वो तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा और उसकी इजाज़त भी है। जी जी, उसकी तो इजाज़त है बिल्कुल। नहीं, ये पेंशन वाला तो मुझे नहीं पता था कि इसका इंटरेस्ट लगता है। मैं पहले शायद नहीं, कभी भी नहीं करवाई, लेकिन मैं सोच रहा था कि करवाऊं, लेकिन अभी वो कल मेरा फिर से वो दिमाग उस तरफ चला गया है कि इसमें इंटरेस्ट है। मेरे किसी रिलेटिव ने पूछा था एक दफ़ा कि उनके पास पैसे हैं तो क्या करें। तो ये 2010 की बात है, जब वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर सोना बेच रहा था। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप औरत हैं, आप सोना लेकर रख लें। तो उन्होंने कोई 5 किलो सोना ले लिया, तो अब उसकी कीमत 10 गुना से बढ़ गई है। मैं दुनिया का कोई इंटरेस्ट इतना नहीं इजाफा कर सकता था जितना उनका ये काम करने से हुआ। जी जी, डॉक्टर साहब इधर आकर जितना ना ज़कात देंगे उन्होंने हलाल होएगा फिर जी। सोने तो हाँ नहीं, ज़कात तो देनी चाहिए ना। देखें 2.5% जो है वो तो आपको हर साल उस चीज़ पर, और सोने की एक मिकदार आप रख सकते हैं बगैर ज़कात के। उससे बढ़ जाए तो फिर आप ज़कात आप पर वाजिब है, खास तौर पर औरतों पर। 7.5 तोले से ऊपर है ना? हाँ, आजकल ज़्यादा कर दी उन्होंने इसकी लिमिट। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम।
सलाम फरूक भाई, ये जो मुनाजरा हुआ था, ये आपकी मैंने वो वीडियो रीपोस्ट भी की है, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप करना, ये कब हुआ है? सर आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा ना। ओहो हो, आपने बड़ा मजे का सीन में कर दिया है फिर तो। इसकी मैं कर रहा हूँ अपलोड यूट्यूब पे। वो लिंक तो है उसमें, इधर आईडी पे लगा हुआ है चैनल का। ये जैसे ही अपलोड होती है ना, उसको मैं करता हूँ इंशाल्लाह। वैसे ये उनके इम्तियाज भाई के चैनल पे भी पड़ी है, जिनकी फोटो आपको नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, उधर हाँ मैं जानता हूँ इम्तियाज भाई, इधर ऑस्ट्रेलिया में ही है, मेरी है बातचीत होती रहती है उनसे। भैया जिसका नाम उनके साथ ही सारी ये कल मीर सलीम की हुई है डिबेट। हाँ, यूट्यूब पे हुई है या व्हाट्सएप इस पे टिकटॉक पे? नहीं, यूट्यूब पे पूरी पड़ी है, यूट्यूब पे पड़ी है, उनके इम्तियाज भाई के भी पड़ी है, मैं भी अपलोड कर रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसको तो पता ही किस बात पर हुआ मुनाजरा? ये डॉक्टर साहब मौजू ये था कि मिर्जा कादियानी की के जो दावे हैं उसकी सच्चाई साबित करो आके। कोई भी जो दिल करे आके दलील पेश कर दो तुम, लेकिन साबित करो उसको कि वो सच्चा था। तो अच्छा, इसको मौका दिया गया मीर सलीम को। वो तो जाहिल ये वही शख्स आपको है। पता है जो ये हरकतें करते हैं। जी जी, जाहिल और गालीबाज। ये आया है, इसने पहले भी आके बदतमीजी की। इसको हमने थोड़ा समझाया कि भाई ये तरीका नहीं होता, हम 2-2 मिनट की टर्म्स रख लेते हैं, आप बोलना फिर वो बोलेंगे। मुझे मॉडरेटर बनाया गया, आमिर हक साहब और अदनान रशीद साहब भी मौजूद थे, बाकी सबको हमने कॉल से उतार दिए भी थे, और इन दोनों को भी खामोश करवा दिया मैंने। मैं 2-2 मिनट की टर्म्स देता रहा डॉक्टर साहब, कोई आधा घंटा गुजर गया, मीर सलीम ने एक दलील नहीं पेश की, बल्कि ये वही रट वहाबियो देवबंदियो फलानो ये वो यही खेलता रहा। फिर अदनान भाई ने शुरू में ही कहा था अगर ये सर्कुलर आर्गूमेंट्स होने लग जाए ना, बात घुमा घुमा वहीं ले आए, तो 3 मौके आप इसको दें कि भाई मौजू की तरफ आ जाओ, नहीं आता तो फिर भगा दो। तो 1-1 मिनट की 3 टर्म्स दी गई फिर दोनों को, यानी इम्तियाज भाई को भी और इसको भी। इम्तियाज भाई ने बार बार अपना चैलेंज दोहराया, और आखिर में तो आखिरी टर्म में उन्होंने ये तक कह दिया मिर्जा कादियानी को सिर्फ मुसलमान साबित कर दो, बाकी झगड़ों में मत पड़ो। ये उस पे भी नहीं आया, ये एंड भी वहाबी चिल्ला चलू के भाग गया। हाँ, वो बात ये है कि इनके पास कुछ है नहीं है हाथ में सिवाय झूठ के, ना इनके पास कोई दलील है, ना ये झूठ के अलावा गालीबाजी के, और इनमें से अक्सर जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। आप इस पर गौर करें। ये बदतमीजी इसलिए करते हैं कि जहालत में अल्लाह ताला ने तो इनके माथों पर लिख रखा है ये जाहिल हैं। एक जाहिल शख्स आपको क्या बता सकता है? आप ये मुझे बताएं। डॉक्टर साहब, ये जो ज़्यादातर जो थे ना पंजाब के बस अड्डों पे, जिनकी नाइयों की दुकानें थी, वो काले कपड़े पहन के या मोचियों की, इस तरह के लोग जो अनपढ़ जाहिल थे, ये आजकल इनके मुरब्बी बनने बैठे हैं, तो ऑफकोर्स उन्होंने तो फिर वही ज़बान इस्तेमाल करनी है जो उनको पता है। हाँ, नहीं, मिर्जा कादियानी को जिन लोगों ने माना उसके में लालच शामिल था कि रोटी, वो उसने लंगर लगाया हुआ था अंग्रेज़ों के पैसे से और लूट मार के पैसे से, और ये लालच देते थे, नौकरियों के लालच थे। तो ज़रूरतमंद लोग, फिर उनकी औलादें हुई, उनमें से कुछ लोग, कादियानियों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत कम हैं, मैं आपको बताऊं, हैं लेकिन उंगलियों पर गिने हुए। अब तो मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कादियानियत में कि उनकी अक्सरियत इन्हें छोड़ गई है। और बास तो इतना अललान, एक थे यहाँ पर डॉक्टर थे, किडनी स्पेशलिस्ट ग्लासगो में, उनका नाम है खान करके कुछ, उनका नाम है एजाज खान या इस तरह का नाम है। उनके 18 साल के बेटे ने हमारी बातें सुनी सोशल मीडिया पर, और फिर उसने, मुझे लगता है कि मुझे किसी ने कहा उसने मेरे साथ भी शायद कभी बात की हो, लेकिन मुझे याद नहीं है। और वो सवाल पूछे तो फिर जाके उसने अपने वालिद से कहा कि भाई पढ़ कर तो देखो, ये तो फ्रॉड है एक। और उसके वालिद साहब ने पढ़ा मोहम्मदी बेगम के बारे में, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त फ्रॉड है। अब उस ख़ानदान के कहा जाता है 20 से ज़ायद अफराद कादियानी छोड़ चुके हैं, और ये वो ख़ानदान है जो कराची का रहने वाला था, और इनका जाली खलीफा जो था ना, वो कराची जाता था तो इनके घर पर ठहरता था। तो ये इस किस्म के लोग भी अब बहुत तेज़ी से और अमेरिका में मुझे पक्का पता है, क्योंकि वहाँ पर तो अमेरिका के जो
11 डॉक्टर और उनकी फैमिलीज हैं, उन्होंने मुझे बताकर कादियानी छोड़ी है और मैंने उनको कलमा पढ़ाया। अल्लाह तो अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, वो इनको डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। ये एंड पे जब ये टर्म्स खत्म हुई है ना, तो आमिर भाई ने मुझे कहा कि यार इसको दोबारा मौका दो, अब चूंकि ओपन हो चुकी है बात, अगर ये कुछ कहना चाहता है तो ये कह ले। उसके बाद जो इसने गालियां दी हैं अल अमान वल हफीज, इसने अपने हाँ, मिर्जे की जहालत सुन्नत को है। पूरा किया है। जहालत। आप देखें अभी ये लड़का बिल्कुल। आया था, अगर सच है तुम में, हम तो भाई रेफरेंस दे रहे हैं ना, आप सब ने देखा। हमने कहा भाई दीदे हक है, मिर्जे के खानदान की किताब है, उसमें जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं, आप भी पढ़ लो। उससे जो मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा ही आपको इल्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी किताब थोड़ी पढ़ के सुनाई। और मैंने कहा कि ये एक गैर मुस्लिम का थीसिस है, वो पढ़ लो। फिर एक मुसलमान है हुसैन नामी, उसका थीसिस है, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कादियानियत, उसका नाम है अहमदियत टू सूफीज़म, इस तरह का कुछ टाइटल है उसका। उसने भी यही बातें की हैं कि ये कुफर है, इल्हाद है, झूठ है, फ्रॉड है, पागलपन। दोनों ने यही कुछ लिखा है। तो हमने तो एक रेफरेंस दिया कि आप इन किताबों को पढ़ लें। डॉक्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये मोस्टली अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ये मुसलमान नहीं होते बल्कि मुल्हद हो जाते हैं? हाँ, वो मैं आपको बता देता हूं कि ये मुझे भी पता है इस बात का। पहली बात तो ये है कि ये पढ़ते नहीं है, आपको ये मैं बता दूं, क्योंकि एक जाहिल शख्स जो है, जो स्कूल भी ठीक से नहीं गया, वो क्या पढ़ेगा, आप मुझे ये बताएं। ये बातें सुनते हैं और बाज दफा इनको लगता है, और मैंने आपको कहा ना कि 900 से ज्यादा लोगों ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया, उसमें से कोई भी मुल्हिद नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि इल्हाद, वो एक सवाल पूछते हैं सारे आपसे कि जी हम किस किस्म के मुसलमान हों, सुन्नी, वहाबी, शिया, कौन सा मुसलमान आप हमें कर रहे हैं। तो मैं उसका जवाब उन्हें बहुत साफ देता हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि ये मसालिक हैं और मसलक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की फर्मा बरदारी में बनाए गए हैं, और इसकी ना सिर्फ इजाजत है बल्कि हुक्म है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हर जमाने में ऐसे इमाम पैदा हों जो मसलक दें। और मसलक क्या है? फतवा है उन मसाइल के बारे में जो उस जमाने में पैदा हुए और जिनका जवाब कुरान और सुन्नत में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो फतवा कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाकर दिया गया है। फिर मैं उन्हें कहता हूं ये फतावा आप पर फर्ज नहीं है, ना सुन्नी होना फर्ज है, ना वहाबी होना, ना शिया होना फर्ज है। चाहे तो मान लें, चाहे तो छोड़ दें, कोई गुनाह भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन कुरान और सुन्नत आप पर फर्ज है जो इनकी बुनियाद है। तो कहा जाता है कि आप एक ही इमाम का फतावा पर रहें, या जो उस इमाम के फतावा पर एक नया इमाम आए नए वक्त में, जैसे अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के फतावा मानते थे, फिर उन्होंने नए जमाने के मुताबिक फतावा दिए। फतवा क्या है? जैसे क्लोनिंग कर रहे हैं तो सवाल पैदा होता है क्या इस्लाम क्लोनिंग की इजाजत देता है? तो अब इसके लिए आपको एक फतवा चाहिए। फतवा एक राय है, लेकिन ये एक जज की राय है जिसकी फेवर में वो दलाइल देता है कुरान और सुन्नत से। अगर वो कुरान और सुन्नत से अपने फतवे को साबित ना कर सके तो वो फतवा नहीं कहलाता फिका की जुबान में। तो वो आप चाहें तो मान ले, चाहें तो ना माने। तो उन्हें मैं कहता हूँ वालेकुम अस्सलाम, किसी भी मसलक पर आप चले जाएं, लेकिन वो कुरान और सुन्नत की तरफ ही है, और मसलक आप पर वाजिब नहीं है। और अगर आप मसलक नहीं मानना चाहते तो ना भी माने, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, आप मुसलमान तो हैं, लेकिन मसलक का मानना इसलिए ज़रूरी है कि यह आपके ज़माने के मुताबिक मसाइल का कुरान और सुन्नत को बुनियाद बना के हल पेश करता है। इसकी एक हदीस जो सही सनद की है, मिशकातुल मसाबीह में है, 3737 उसका नंबर है, 3737, तो पढ़कर देख लें। ये फरमान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर कोई शख्स मसलक को बुनियाद बनाकर आप में तफरका डालता है तो वो बहुत ही बदबख्त शख्स है।
तो ये सब मान लेते हैं बात। मुल्हद होने की क्या वजह है कि ये हाँ, मुल्हिद होने की मैं वजह बता दूं आपको। कादियानियत इल्हाद पर कायम है, आपको अगर इल्म नहीं है। कादियानियत को चलाने वाला हर शख्स और मिर्जा खानदान का हर शख्स मुल्हिद है। आपको ये बात बड़े वसौक से पता होनी चाहिए। और इस बात को मैंने बड़े करीब से, चूंकि मेरा जो वाकफियत थी थोड़ी बहुत इनके खलीफों से थी, नीचे वालों से नहीं थी, इसलिए नीचे वाले मुझे पहचान नहीं पा रहे मैं कौन। तो इनके खलीफे मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। तो उनको मैंने देखा, वो इल्हाद पर कायम थे। मैं आपको एक मिसाल बता दूं। एक दिन मिर्जा ताहिर बैठा था, और उस वक्त तो मैं पढ़ता था स्कूल में, शायद यूनिवर्सिटी जा रहा था। तो मेरे सामने बैठा था, जैसे 2 फुट के फासले पर आप बैठते हैं, दरमियान में छोटी सी मेज है, आप बातें कर रहे हैं। तो 2-3 आदमी और थे। तो किसी शख्स ने उसे कहा कि देखो, मौत के बाद एक जिंदगी है और इसका सबूत साइंस में है। तो वो कहने लगा कि अच्छा, तो फिर जिस शख्स को जानवर खा जाता है उसका क्या बनता है? तो मैं बड़ा हैरान रह गया। मैंने कहा इसको तो यकीन ही नहीं है कि मौत के बाद जिंदगी है। फिर उसने कुछ बातें ऐसी की, तो उसने कहा ये जो खुदा का वजूद है ना, ये एक इंसान के दिमाग की इजाद है, वरना ऐसी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। और फिर उसने कहा कि तुमने एवोल्यूशन की थ्योरीज नहीं सुनी कि इंसान तो बस डेवलपमेंट का नतीजा है। मैं ये सुनकर इतना हैरान रह गया, आखिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा, और उसकी पोजीशन क्या थी उस बंदे की? वो इनका खलीफा था, ताहिर है, मिर्जा ताहिर, जो जिसको ये सबसे तेज खलीफा मानते हैं। ओहो। डॉक्टर साहब, ये जो जायद मुल्द है, ये ज़हीर मुल्द है, ये मरज़ाई है मुल्द, इसके कपड़े गुम हो गए, इसको लिबास देना यार, इसको ऊपर बुलाएं। नहीं नहीं, ये बुला लें अगर आप चाहते हैं, लेकिन बात ये है, मैं आपको जवाब दे दूं, कादियानियत को जो जानकर छोड़ता है ना, वो शख्स जो कादियानियत को जैसे मीर सलीम छोड़ेगा तो वो मुल्हिद हो जाएगा। वो हो गया मुल्हिद, वो तो है ही नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, जो कादियानियत को पढ़कर और जानकर इसमें रहता है वो इल्हाद में रहता है और वो मुल्हिद हो जाएगा। लेकिन 90% कादियानी इसलिए कादियानी है कि वो अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान समझते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो लोग जब इस्लाम कबूल करेंगे तो कभी इल्हाद में नहीं जाएंगे। आप ये बात मेरी याद रखना। सही है। हाँ जी। ये क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग ये है कि आप एक इंसान से उसकी कॉपी बना सकते हैं आजकल, उसी जैसा दूसरा इंसान तख्लीक कर सकते हैं बगैर माँ बाप के। साहब, इसका मतलब क्या है कि अब्दुल्ला कर ले सवाल। मैं पूछ रहा था ये कैसे होता है, ये प्रोसेस सारा कैसे होता है? आप अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई इंसान मर जाए, थोड़ी सी तफसील से बता दें शाह साहब, क्योंकि हाँ मैं बता देता हूँ, मैं जानना चाहता था इसके बारे में। हाँ, क्लोनिंग है कि आप एक इंसान जो जिंदा है या मर गया है, दोनों सूरतों में से उसकी आप एक कॉपी बना सकते हैं जो 100% शक्ल सूरत, कद में, हर चीज में उसकी कॉपी होगी। और अगर वो बड़ा हो जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा दोनों में। आप समझ रहे हैं ना? ये ऐसे किया जाता है कि आपके जिस्म में सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनमें से कोई एक सेल चाहिए होता है। आप मुंह के अंदर से आमतौर पर वो सैंपल ले लेते हैं म्यूकस का, म्यूकोजल लाइनिंग का, तो वहां से अब होता है ऐसा है कि एक एक्स सेल है और एक स्पर्म है, जैसे आदमी बनता है माँ बाप के मिलाप से। तो उस एक्स सेल्स में से वो डीएनए निकाल लेते हैं और जिसकी कॉपी करनी हो उसका डीएनए डाल देते हैं। डीएनए वो चीज़ है जो बच्चा को बनाने की पूरी इंस्ट्रक्शन है उसमें। फिर उसको कुछ देर लेबोरेटरी में बनाया जाता है और फिर सारोगेट मदर में उसको, जैसे आईवीएफ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसको यूट्रस में डालते हैं तो फिर वो बच्चा बन जाता है। फिर वैसे ही पैदा होता है जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं।
اور پھر لیکن وہ اس آدمی کی کاپی ہوتا ہے جس کا ڈی این اے آپ نے وہاں رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی اوور سمپلسٹک ایکسپلینیشن ہے اس کی, اور اس کے بارے میں سورہ یاسین میں بھی ہے. میں آپ کو سورہ یاسین کی آیات بتاؤں, یہ کلوننگ کے بارے میں ہے. وہاں لکھا ہے اولم یرئی الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. کیا انسان نہیں دیکھتا ہمیں اسے ایک نطفے سے, نطفہ ہوتا ہے باپ اور ماں کے ملنے سے, آدمی عورت کے ملنے سے جو بنتا ہے اسے نطفہ کہا جاتا ہے, کہ ایک نطفے سے پیدا کیا, پھر وہ میری بڑا ہو کے میری مثالیں بیان کرنے لگا. اولم یرئی الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. میری مثالیں بنانے لگا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. کہنے لگا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کون زندہ کرے گا. یہی ملحد کہتا ہے نا. اس کا ڈائریکٹ جواب ہے قرآن میں. کل آپ ان سے کہتے ہیں شاہ صاحب میں پوچھ رہا تھا ہاں جی کہ بایولوجیکل جو ماں باپ ہوں گے انہی دونوں کا لیا جائے گا سلائیوا, یا انہی دونوں کا ڈی این اے لیا جائے گا, یا باپ کی طرف سے؟ نہیں, کسی ماں باپ کی طرف سے نہیں. آپ اپنا کلون بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا سیل لیا جائے گا بس, اور کچھ نہیں. تو دوسرا سیل کے کسی خاتون کا ہوگا کیا؟ نہیں, کسی کا نہیں ہوگا, آپ ہی کا ہوگا. اور بس وہی, اس کو ایک ایگ سیل چاہیے ہوتا ہے انکیوبیٹر, اس میں ڈال کے بچہ بن جائے. وہ ایگ سیل کس کا ہوگا؟ وہ کسی خاتون کا ہوگا نا؟ ہاں, وہ عورت کا ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ایگ سیل نہیں ہوتا, اس کو زائگوٹ کہتے ہیں. اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے, لیکن آپ سمجھیں کہ اگر سیل صرف آپ کا ہوگا, اس میں جین صرف آپ کی ہوگی. نہیں, وہ شاہ صاحب وہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک بندے کے ڈومیننٹ کرانا, جینز کو ڈومیننٹ کرانا, وہ اس کو کلوننگ نہیں کہتے. نہیں, آپ ڈومیننٹ کا کہاں سے آ گئے. یہ کلوننگ ہے. کلوننگ ہے کہ آپ میں سے آپ کی ایک اور کاپی بنا دی جائے. وہ بن جائے گی لیکن وہ اس طرح بنے گی کہ میرے جینز کو ڈومیننٹ کرایا جائے گا اس خاتون کے جینز پر. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے آپ یہ بتا دیں ایگ تو چاہیے نا خاتون کا؟ نہیں, ایگ نہیں چاہیے, اس کا بس زائگوٹ ایک ہوتا ہے, ایک انکیوبیٹر میڈیا ہے. خاتون کا ہو گیا نا. ہاں, وہ تو مطلب جیسے یہ تو وہی بات ہے. یہ تو شاہ صاحب کلوننگ نہیں ہے یار. وہ آرٹیفیشل بھی بناتے ہیں نا آج کل, آرٹیفیشل بھی ہوتا ہے سارا کچھ. دیکھو بھائی, یہ میرا پیشہ ہے کلوننگ جو ہے نا, ڈی این اے, میں اس کا ماہر ہوں. نہیں شاہ صاحب, کلوننگ پیورلی جو ہے نا وہ ایسے بیس پر کی جا رہی ہے یا کی جاتی ہے جس میں سے عورت کا ایگ یا عورت کا زائگوٹ نہ چاہیے ہو. ادھر عورت کا زائگوٹ بھی چاہیے, اس کا ایگ بھی چاہیے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو ایک میڈیم چاہیے اس ڈی این اے کو پرولیفریٹ کرنے کے لیے, اور اس کو خالی کیا جاتا ہے پہلے. جس زائگوٹ کو لیتے ہیں اس میں سے پرانا ڈی این اے نکال دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے نئے ڈی این اے سے جو اس کا ہوتا ہے, جس کی کاپی کرنی ہے. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں. جی شاہ صاحب, یہ تو سارٹنگ ہے نا, سارٹنگ ہے, یہ تو سارٹنگ ہے. اس کو میں اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے. اس نیوکلیس سے سارا نیوکلیئر میٹیریل نکال کے جس کی کاپی بنانی ہو وہ ڈال دیا جاتا ہے. اسی کا نام کلوننگ ہے. میں تو ہاتھ سے کرتا ہوں میرے بھائی, آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ میرا تو پیشہ ہے. یہ میرے بھائی آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب جو ہے نا زائگوٹ سے